So, welcome to the show. And Rotary is known for its renowned motto of service above self. And I think Team Apeksha is kind of enlightening that motto by their services to the community. Today, we have with us one of the important members from Team Apeksha, Rotarian Mohammed Master, who is leading the project of plasma donation. Welcome, sir. And we would like to know from you, like today, everyone is talking about plasma donation, but in a layman's language, what is this plasma and what is therapy? Right. Thank you, Saloni. See, our blood is made up of 3-4 components, Yes. Which includes RBC, जो हम हमेशा सुनते हैं, red blood cells, corpuscles, white blood cells, platelets, और एक प्लाज्मा होता है जो हमने सिर्फ कोविड के टाइम पे ज्यादा सुना है. Right. तो प्लाज्मा जो है, it is the liquid part of the blood which flows in our veins, and it contains proteins, and it is responsible for generating antibodies in the blood. So whenever a person is infected by COVID, and when he recovers from it, there it leaves some antibodies in the blood. Yes. Now, when this blood is taken from the infected person who's recovered from the COVID and given to the person who's infected, the immunity part of the person increases, and it helps him to fight the COVID that he's undergoing. Yeah. So it helps his ability to fight more against the virus, and he has more chances of recovery. And this is what plasma therapy is, and in the real language it is known as convalescent plasma therapy. हम उसको सिर्फ plasma therapy के नाम से जानते हैं. So that is all about plasma and why plasma is used for COVID patients. So as we have seen that the second wave has been very dangerous, and in the first wave, not a lot of need of plasma was there out in the community, in the society. But at present, you as a team member, you know how many calls you would be receiving for plasma on a daily basis. A lot of people, because in this panic situation, are unaware about what is the eligibility of a donor who can actually come forward and donate plasma, as not all the recovered patients can come and donate. So could you enlighten us more on कौन आ सकता है and donate कर सकता है plasma? A person, say, we'll take an example that if a person is infected on the day one, like if he's infected on 1st April of the month, and it takes 14 days of quarantine and to recover. After he recovers, यानी 14 दिन के बाद में जब वो रिकवर होता है, तो 14 दिन और उसको रेस्ट लेना चाहिए. यानी in total he should take 28 days from the day he is infected. After 28 days he is able to donate plasma, right? Yes. And the before the plasma is taken, the blood is tested, and if after testing, if they find enough antibodies in his body, in his blood plasma, then only that person is allowed to bleed. Otherwise we don't, otherwise the what do you say, the donor is rejected. Now so this is the first thing. Secondly, any person above 18 to 55 can donate blood. Usually we don't allow females above 30, or females who have married and who have conceived child are not allowed to give blood. People who have who are taking coagulant, like say Dispirin, to thin the blood thinners जो लेते हैं, उनको हम अलाउ नहीं करते. तो इन लोग को नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं. So you mentioned simple way of eligibility, किन लोगों को करना चाहिए and किन लोगों को नहीं करना चाहिए. In your process, so could you just let Nagpurians know what's your process? How can we approach you? And how could you help us with plasma donation? What's the system of Rotary Club of Nagpur?
it is very simple. My number has been rotating all around, not only in Nagpur, all over India. और अपनी पूरी जो टीम है हमारी अपेक्षा की, उसके उनको सबको बाहर से कॉल आ रहे हैं. इनफैक्ट ओवरसीज कॉल्स भी आ रहे हैं अभी तो, कि भाई मेरा कोई नागपुर में पेशेंट है, दिल्ली में है. तो हमारा जो पूरा रोटरी का जो कनेक्ट है वो हम यूज करते हैं. हमारे जो मेंबर है अभिषेक गोयल, उनका बहुत अच्छा कनेक्ट है पूरा ऑल ओवर इंडिया में रोट्रैक्टर्स का. तो उनके थ्रू हम हर एक को मदद करने की कोशिश करते हैं. तो वी आस्क फॉर द डिटेल्स ऑफ द पेशेंट, उनका ब्लड प्लाज्मा, कॉन्टेक्ट पर्सन, और इतना मिलने के बाद में हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं डोनर के लिए. नाउ सबका क्वेश्चन यही रहता है कि हमने तो आपको डोनर के लिए फोन किया है, तो आप हमसे क्यों डोनर मांग रहे हैं? लेकिन ऐसा है कि प्लाज्मा कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, कोई इंसान देगा, जब भी वो इंसान का ब्लड लेके हम दूसरे इंसान की मदद कर सकते हैं. तो वी नीड डोनर्स. अनलेस एंड अनटिल वी हैव डोनर्स, we are short of plasma. We get around, between me, Prashish, and other 2-3 members of our team, we get around 150 calls in a day. और हमारी जो दूसरी टीम है, जो 15-20 लोगों की जो दूसरी टीम है, जो दिन भर में 200-300 कॉल्स कर रही है, उसमें से हमको 10-20 डोनर्स मिलते हैं. वो 10-20 डोनर्स का हम 20 लोगों की, अगर 10 डोनर मिले तो 20 लोगों की मदद कर सकते हैं, 20 डोनर मिले तो 40 की मदद कर सकते हैं. लेकिन फिर भी वी फॉल शॉर्ट ऑफ, बहुत सारे शॉर्ट हो जाते हैं. यानी 150 कॉल आए तो 110 को हम मदद नहीं कर सकते. एंड इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट हर्ट्स यू कि मैं इतने कॉल आ रहे हैं और बेचारे सामने वाला का जो आवाज सुनो, इतने परेशान रहते हैं, यू आर नॉट एबल टू हेल्प. सो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, बट देन यू कैन नॉट हेल्प इट. सो एवरीबडी शुड, जिनको भी कोरोना हुआ है वो आगे से सामने रह के आके उन्होंने अपना ब्लड प्लाज्मा देना चाहिए, एटलीस्ट टेस्ट कराना चाहिए, अगर एलिजिबल है तो देना चाहिए. Thank you so much, sir. After the plasma donation, जैसे आपने बोला, you're calling donors, they are coming to the blood bank. What are the precautions? क्या precautions as a after donation उन्हें लेने चाहिए so they are safe and secure? एक्चुअली ब्लड प्लाज्मा जब देते हैं तो उसके पहले उन्होंने, दे शुड, यानी 2-3 घंटे पहले कुछ खा लेना चाहिए. जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, टू कीप योर एनर्जी अप, हैव हेल्दी फूड विथ विटामिन, आयरन, जिंक, जो भी उसके अंदर में है. उसके बाद में बहुत सारा पानी पीना चाहिए. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. यू कैन टेक सिंपल वाटर और यू कैन यूज इलेक्ट्रॉल. ईट फ्रूट्स विच आर फुल ऑफ वाटर, जैसे वाटरमेलन है, ये जो फ्रूट्स है जिसमें पानी ज्यादा है वो लेना चाहिए. इससे हाइड्रेटेड रहेंगे. और वैसे भी कैसा है ना कि एक बार प्लाज्मा देने के बाद में हर 14 दिन के बाद में वो प्लाज्मा दे सकते हैं. लोगों को ये लगता है कि हम बहुत वीक हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई वीकनेस वगैरह नहीं आती है. ये छोटा सा प्रिकॉशन लिया तो कुछ तकलीफ नहीं होती है. सेकेंडली, जिसने शराब पिया है, एनीबडी हु हैज टेकन अल्कोहल, वो 24 घंटे तक के अपना ब्लड या ब्लड प्लाज्मा नहीं दे सकते हैं. जिन्होंने 24 घंटे पहले सिगरेट पिए हैं वो भी अवॉइड करे तो ज्यादा बेहतर है. और जो चेन स्मोकर्स हैं उनसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई आप अपना ब्लड मत दो. तो दैट इज ऑल. Yeah, so basic nutrition जो अच्छा रखे, जैसे हम आफ्टर इवन ब्लड डोनेशन या उसके भी पहले जो ध्यान रखते हैं वो भी रखा जाए तो वी कैन रिपीटेटिवली हेल्प पीपल. एज आपने बोला, फ्रॉम वन डोनर वी कैन सेव 2 lives. So yes, so I think this movement is great. What is your message to Nagpurians? क्या उन्हें ख्याल रखना चाहिए अपना इस समय में? How can they keep their family safe and strong? इसमें सिंपल है. अगर एक आदमी अपना खुद का ख्याल रखता है और दूसरे को वो ख्याल रखने के लिए एडवाइस करता है या रिक्वेस्ट करता है, जो हमारा एसएमएस है कि भाई मास्क पहनो, वॉश योर हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये जो एकदम सिंपल रूल्स है, अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को बचा सकते हैं. और हमने अगर अपने आप को बचा लिया तो हमने अपने साथ में 4 लोगों को, जो हमारी फैमिली है, उनको बचा सकते हैं. पहला तो ये. दूसरा, जैसे ये लॉकडाउन है तो जितना अवॉइड कर सकते हैं, जैसे बाहर जाना है, या जो अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करके हम हमारा काम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के और बाकी के ध्यान रख के करते हैं, तो दैट इज गुड इनफ. मेरा सिंपल मैसेज ये है कि
हमारे यहाँ हम है ना, हम लोग बहुत सारी कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, Yes. हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज की तारीख में मैंने किसी को ये सुना नहीं है ये बोलते हुए कि भैया मोहम्मद मास्टर का खून मनोज को नहीं लग सकता या सलोनी को नहीं लग सकता। हमारा प्लाज्मा हर जगह लग रहा है, Absolutely. यानी उसमें उसमें कोई धर्म जाति नहीं है। तो हमने वो भूल के हमने एक दूसरे की मदद करना चाहिए, जितनी भी मदद कर सकते, सिर्फ बोल के किसी को सहानुभूति भी देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा मदद है। दूसरा, तीसरा, जो लोगों को कोविड हुआ है प्लीज आप खुद सामने आइए और अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कीजिए। आप एक आदमी जो ब्लड देता है वो 2 आदमी की जान बचा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आज आपने उसकी जान बचाए, कल शायद ऐसा ही कोई बंदा आपकी जान बचाने आएगा। क्योंकि अभी ये कोविड है, पता नहीं कब खत्म होगा और कितनी देर चलेगा। तो हमको साथ में चलना है, एक साथ मिलके चलना है, एक दूसरे की मदद करना है। यही मेरा संदेश है। Thank you थैंक so यू। much, sir. And यही actually all Nagpurians have to do. मास्क पहनिए, अपने आप को सेफ रखिए, keep the family safe. And when all families are safe, the city will be safe, and then the nation will be safe. Thank you so much, and hopefully Nagpurians take care, take precautions, follow the COVID appropriate behaviors, come forward, donate plasma, and if you have any query, if you need any help, please contact Team Apeksha, and we hope all these humanitarian services will help people to grow and come out of this COVID-19 stronger. Thank you so much. Yes, yes, sure. We will fight it and come stronger. Yes. Thank you so much, Saloni. Thank you so much.